ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ವಿಷಯ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ದೇವರೇ, ಇಂದು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹಾಡುಗಾರನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ, ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಇಂದು ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ, ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಇಂದು ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ದೇವರೇ, ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಮಣಿಯ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇವದೂತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ, ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ, ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಇಂದು ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. IAM ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಂಗೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 51, 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ವಚನ, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು, ನನಗೆ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೂತನಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಈ ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿವಸ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ, ಚಿಂತೆ, ಬಾಧೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಮಹಾರೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಆಶೆ ಉಂಟು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ನಮಗೆ ಉಂಟು, ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ.
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಣಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಬಲ, ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ, ಹೊಸ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಧಾರಾವಿ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಸದಾದಂಥ ಹೃದಯವನ್ನು, ಹೊಸದಾದಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಹೊಸದಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀಗಿಸಿ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸು. ಯವನಸ್ಥರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟಿ ನೀನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಣಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಆಯಾಸವಾಗಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನೀನೇ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸು. ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. VBS ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಲ್ಲೆವು. VBS जो है हमारी कलीसिया की, धारावी चर्च की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंबा या पिलर है करके कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम साल में इसके लिए बहुत ही इंतज़ार करते हुए एक आत्मिकता में बढ़ोतरी पाते थे. हर एक VBS में जो है जेम्स कुमार अय्या एक सवाल हम सभी से करते थे. वो सवाल आप में से बहुत सारे लोगों को याद आता होगा, खास करके बच्चों को, जवानों को और टीचर्स को ये बात याद आती होगी. हाउ इज़ योर सोल टुडे? हाउ इज़ योर सोल टुडे? और हम सब बच्चे टीचर्स मिलकर ये जवाब देते, ऑल इज़ वेल विथ माई सोल, ऑल इज़ वेल विथ माई सोल. एंड दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न जो है हम सभी को हमारी आत्मिक जीवन को टटोलने के लिए, परीक्षा करने के लिए और सही तरह से हमारी आत्मा को बनाने के लिए ये सवाल हमें मदद करती. मैं इस सवाल के बारे में जब सोच रहा था, और इसी के बारे में जॉन वेस्ली जो है ये सवाल किया करते थे. जॉन वेस्ली कौन है? हमारे मेथोडिस्ट कलीसिया के फाउंडर. ये जब अपने ग्रुप्स को उन्होंने बनाए थे मेथोडिस्ट क्लब ग्रुप के अंदर, वो फ्रेंड्स जब इकट्ठा होते थे प्रार्थना के लिए, तो पहला सवाल उन लोग ये करते थे, हाउ इज़ योर सोल? और एक दूसरे को देखकर ये जवाब देते, ऑल इज़ वेल विथ माई सोल, इफ़ इट इज़ सो. अगर अच्छा है तो इस तरह से जवाब देते. तो आज मैं ये प्रश्न जो है हम आप सभी से करना चाहूँगा, हाउ इज़ योर सोल टुडे? आपकी आत्मा कैसी है? निना आत्माओं ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. क्यों मैं ये सवाल करना चाहता हूँ? क्योंकि आज की परिस्थिति के अंदर जब हम देखते हैं, सब कुछ जो है हमारा जीवन घर के 4 दीवारों के अंदर सिमट चुका है. घर के 4 दीवारों के अंदर जो है ऑनलाइन के द्वारा हम बाहर झांक रहे हैं या फिर देख रहे हैं. बच्चे स्कूल्स ना जाते हुए लैपटॉप, मोबाइल के सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. और हमारे ऑफिस ना जाते हुए कई लोग जो है
हमारे घर में बैठकर हम काम कर रहे हैं। सो हमारा रूटीन लाइफ जो है बहुत सारा रूप में बदल चुका है। एवरीथिंग इट हैज कम इनटू दिस कम्पैक्ट रूम ऑफ आवर होम, हमारे घर में आ चुके हैं और हम पहले से ज़्यादा जो है व्यस्त हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा जो है बिजी हो चुके हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि हमें लॉकडाउन कब खुलेगा, हम कब बाहर जाएंगे। और इस परिस्थिति के अंदर रहते समय हम में से बहुत सारे लोग जो हैं ये सारी चीज़ों को करते द्वारा, जॉब को, स्कूल को और हमारे सब कामों को व्यस्त करते समय हमने कुछ चीज को बहुत ही भूल गए हैं। और वो क्या भूल गए हैं? वो है हमारी आत्मिक जीवन, अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ। इन द पैंडेमिक सिचुएशन जब शुरुआत हुई, बहुत सारे लोग जो है अपने आत्मिक जीवन को लेकर सीरियस हो गए, अपने आप को उन्होंने जो है परमेश्वर के हवाले किया, वचन को, प्रार्थना को, परिवार की प्रार्थना, हर एक वचन को बहुत ही गौर से सुनना है, सारी बातें करते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये 1.5 साल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लोगों के अंदर इस आत्मिक जीवन के प्रति, आराधना के प्रति, प्रेयर मीटिंग्स के प्रति हमारा इंटरेस्ट जो है कम होते जा रहा है। ऑनलाइन सर्विसेज में बहुत ही कम लोग अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब के अंदर मैसेजेस बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, फेसबुक लाइव के अंदर मैसेजेस हम कम लोग देख रहे हैं। सो ऑल दिस इज क्रिएटिंग अ ग्रेट कंसर्न फॉर द पास्टर्स। ये सब चीजें जो है हम पासवानों के लिए बहुत ही चिंता एक उत्पन्न कर रही हैं। क्या हमारे लोग जो है आत्मिकता में अपने आप को अपडेट रखे हैं क्या? आज स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजों को, सारे गैजेट्स को हम अपडेट करते रहते हैं। अगर अपडेट नहीं किया है तो वो हमारा फंक्शन सही तरह से नहीं होता है। तो ये सारी चीजों को जब हम अपडेट करते समय पर क्या मैं अपने आत्मिक जीवन को भी अपडेट कर रहा हूँ क्या? व्हाट अबाउट माय स्पिरिचुअल स्टेटस? आई एम अपडेटिंग ऑन द व्हाट्सएप के अंदर हर दिन मैं अपडेट करते रहता हूं मेरे स्टेटस को, लेकिन आज मेरे सोल के स्टेटस को क्या मैं अपडेट कर रहा हूं? एम आई अपडेटिंग माई सोल स्टेटस? सो टुडे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ इज योर सोल टुडे? सो अपडेट योर सोल। आज जो है अपने आत्मा के स्टेटस को आप अपडेट करना है। वेर आर द थिंग्स दैट वी हैव गॉन रॉन्ग, या फिर हम कहाँ पर जो है चूक गए हैं हमारे सोल को अपडेट करने के अंदर। मैं 3 बातें बताना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 3 बातों को उन सारे बातों के अंदर कवर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात जो है हम देखते हैं हमारे अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के बारे में हम सभी लोग जो है लापरवाह हो चुके हैं। वी आर बिकम द नेग्लिजेंट अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ। दिस इज नंबर 1। सेकेंड, दूसरी जो है हम ये देखते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के वी आर बिकम आइडल, यानी कि हम बहुत ही आलस्य हो चुके हैं, इग्नोर कर रहे हैं। थर्ड वे देखते हैं जब आत्मिकता के विषय में या फिर परमेश्वर की बातें आती हैं, वी वांट टू पोस्टपोन। जो चीजें अर्जेंट है हम वही कर रहे हैं, हमारे काम, हमारे स्कूल, हमारे लाइफ को हम कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के बारे में वी आर पोस्टपोनिंग। सो दीज आर द 3 एरियाज दैट यू एंड आई नीड टू थिंक and update my status of the soul. So first of all, let us see, updating from the negligence to the carefulness. Negligence to the carefulness. आज हमें हमारे आत्मिक जीवन को अपडेट करना है, कहां से? लापरवाह से लेकर के चौकस की ओर, यानी कि केयरफुल रह करके हमारे जीवन को बिताना। द वर्ड नेग्लिजेंस, शब्द नेग्लिजेंस जो है बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही हमारे जीवन में बहुत ही महंगा पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम घर साफ करते हैं, घर पोंछते हैं गीले कपड़े से, साबुन से पोंछने के बाद जब गीला होता है तो हम ये कहते हैं कि कोई इधर आओ मत, क्योंकि फिसलेगा, इससे गिरोगे। कभी कभी हम लोग बिना बोले अगर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, हो सकता है कि हड्डी टूट जाते हैं पैरों के, या फिर कभी कभी जान भी जा सकती है। छोटी सी लापरवाही अगर हम कर देते हैं, वहां पर हम जान खो देते हैं। फिजिकली हमारे जीवन के अंदर भी देखते हैं, अगर छोटा सा चेस्ट पेन होता है, अगर हम उसे इग्नोर करें, कई बार जो है वो महंगा पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि हार्ट अटैक हुआ है। काम के अंदर, जॉब के अंदर हम अपने छोटे गलतियों को जो है सुधारने के बजाय अगर हम उसे आगे करते हैं, तो हो सकता है कि हम जॉब के अंदर अपने जॉब को खो दे। ठीक उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन को भी लेकर आज अगर हम थोड़ी बातों में लापरवाह है, तो हो सकता है कि हम अनंत काल के अपने जीवन को खो बैठे। कुछ लोगों के नामों को मैं बाइबल में से लेता हूं, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने लापरवाही की लेकिन बहुत बड़ा मूल्य चुकाए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं
हवा और आदम दोनों को परमेश्वर ने कहा था कि ये फल जो है आपको नहीं खाना है। उन्होंने लापरवाही की, उसे खाया और बहुत बड़ा दंड उन्होंने पाया करके हम देखते हैं, जहां से पाप की शुरुआत हुई करके हम देखते हैं। दूसरा और एक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं जिन्होंने लापरवाही की। लूत की पत्नी को कहा गया था कि तुम पीछे पलट कर नहीं देखना है सोदम गोमोरा शहर से, लेकिन वो फिर भी लापरवाही दे करके उसने पीछे पलट गए। हम देखते हैं कि वो नमक का खंबा बनकर वहां पर रह गए। मूसा अपने जीवन में जो है एक बार एक जगह पर गलती की। चट्टान को उनको कहा था कि केवल लाठी दिखाना है, लेकिन वो गुस्से में आकर उस लाठी से उन्होंने क्या किया, पत्थर को मारा, जहां से पानी तो निकला, लेकिन उसके वजह से जो है मूसा कानान देश में प्रवेश नहीं कर पाया कहकर। तो आज ये छोटी सी लापरवाही हमारे आत्मिक जीवन को जो है पूर्ण रूप से नष्ट कर सकती है। आप कहेंगे अय्या किस तरह से हम इन दिनों में, इन लॉकडाउन के दिनों में, इन दिनों में हम क्या लापरवाही कर रहे हैं? एक चीज में हम लापरवाही कर रहे हैं, वी आर नेग्लेक्टिंग द गॉड्स रेवरेंस। वी आर नेग्लेक्टिंग द गॉड्स रेवरेंस। आज परमेश्वर की जो हॉनर, जो आदर, जो गौरव, जो भय हमारे अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे विषय को लेकर के अगर हम देखते हैं हमारे लाइफ के अंदर एक कम हो रही है। बाइबल के अंदर एक घटना ऐसी है जहां पर 2 सैमुएल उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 9 वचन के अंदर हम पाते हैं। 2 सैमुएल चैप्टर 6 वर्स 1 to 9। यहाँ पर दाऊद जो है राजा बनने के बाद ये परमेश्वर का संदूक यानी कि आर्क ऑफ द कवेनेंट, जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति कहलाती है, जहां पर भी परमेश्वर के संदूक होती वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती। परमेश्वर की उपस्थिति होने की वजह से उनके जीवन में जय मिलता और उनका आत्मिक जीवन और सब कुछ जो है सही रहता। इसलिए दाऊद राजा ने एक निर्णय ले लिया कि वो जो आर्क ऑफ द कवेनेंट ये अबीनादाब जूदा के यहाँ पर था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसे हम यरूशलेम में लेकर आएंगे। जब यरूशलेम में लेकर आने का उन्होंने सब प्रोग्राम बनाया और इस कवेनेंट को, इस संदूक को जो है एक बड़े बैलगाड़ी के ऊपर, काट के ऊपर यानी बैलगाड़ी के ऊपर रखकर वो जब लेकर आ रहे थे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ लेकर आ रहे थे। दाऊद राजा और उनके सारे याजक लोग आगे खड़े होकर गीत गाकर इसको लेकर आ रहे थे कि परमेश्वर की उपस्थिति वापस से यरूशलेम में आ रही है। लेकिन आर्क ऑफ द कवेनेंट, उस बैलगाड़ी के आसपास जो है कुछ लोग थे, उसमें से जहां उज्जा, और कुछ दूर आने के बाद इस तरह से होता है कि बैलगाड़ी थोड़ी सी डगमगाती है और वो परमेश्वर का संदूक गिरने पर आती है। गिरने पर आते समय पर उज्जा जो व्यक्ति था वो उसे पकड़ने की कोशिश की, और जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, परमेश्वर का गुस्सा जो है उसके ऊपर भड़क गया और वो वहीं पर जो है मर गया करके हम देखते हैं। क्या रीजन था? कारण क्या था? कारण ये था कि उज्जा जो है लापरवाही से परमेश्वर के संदूक को छूने का प्रयास किया, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दिया था। पहला इतिहास उसका 15वां अध्याय दूसरा वचन 14 और 15 वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर के संदूक को छूने की इजाजत किसी को नहीं थी, केवल याजकों को या फिर शुद्ध होकर लोग रहते हैं उन्हीं को छूने की इजाजत। लेकिन इन्होंने इस बात को इग्नोर यानी कि लापरवाही करने की वजह से उन्होंने छूने का प्रयास किया और वहां पर जो है उज्जा मर गया करके देखते हैं। दाऊद और उनके सारे लोग जो है बहुत ही भयभीत हो गए, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता को लेकर, स्पष्टता से सारी बातों को मानकर उन्होंने यरूशलेम में इस परमेश्वर को संदूक को लेकर आया करके देखते हैं। टुडे, आज मैं और आप अपने आत्मिक जीवन के बारे में जब हम सोचते हैं, लॉकडाउन के पहले चर्च हमारे लिए बहुत ही मायने रखता था। 2 घंटे की आराधना हमारे जीवन में पूरे हफ्ता भर के लिए एक नई आत्मिक आशीष, एक आत्मिक ताकत को हमें देते थे, और उस रेफरेंस से, उस आदर से, उस भय से हम उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहां पर उस आंखों को बंद करते हुए हृदय से, पूरे मन से हम आराधना करते हैं। लेकिन आज के दिन हमारी आराधनाएं जो है मोबाइल के अंदर या टीवी के अंदर जब हम डालकर देखते हैं, आज किस तरह से हमारी भावनाएं हैं, हाउ इज अवर एटीट्यूड, आज इस आराधना के प्रति, वचन को सुनने के प्रति आज हम किस तरह से देखते हैं। फैमिली में बैठकर क्या हम आराधना का समय वो कर रहे हैं? जितने भी लोग कर रहे हैं, जितने परिवार के लोग कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड उन सारे लोगों के लिए। लेकिन जितने भी लोग ये सारे
लिंक्स को देखने के बावजूद भी जो है देखना नहीं चाहते हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। वी आर जस्ट इग्नोरिंग दिस थिंग। परमेश्वर की आराधना करना, उनको महिमा देना, उसका समय, उनका समय जो सब्बत दिन का समय, उनकी आराधना करने का समय अगर हम खो रहे हैं, दे रहे हैं, लापरवाही हो रहे हैं, सो गॉड में टेक दिस अकाउंट। परमेश्वर हो सकता है कि आज उस बात का अकाउंट। सो आज मुझे जरूरी है कि मैं अपने आप की आत्मिक जीवन को अपडेट करूं। कहां से? इस नेग्लिजेंस से, लापरवाही से लेकर केयरफुल रहने में। सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ रिगार्ड टू गॉड। परमेश्वर के बारे में, उनकी आराधना करते समय वही सद्भावना, वही भावना से, उसी तरह से, उसी आदर गौरव से मुझे उनको आराधना करना है, उनका सम्मान करना है। आज हम परमेश्वर को भेंट अर्पण नहीं कर पा रहे हैं संडे के दिन, लेकिन क्या वो ऑफरिंग को मैं बाइबल के अंदर या फिर मेरे डब्बे के अंदर रख रहा हूँ? हाउ मच यू आर गिविंग? कितना हम दे पा रहे हैं, कितना दे रहे हैं? हो सकता है कि 100 रुपए, 200 रुपए या फिर 50 रुपए हम दे रहे हैं, लेकिन वो देने के लिए भी आज हम कई बार सोच रहे हैं। क्योंकि हमारे घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है, बहुत सारा तकलीफ है, इस तरह से हम कह रहे हैं, बट वी आर नेग्लेक्टिंग इन दैट पार्ट। हम उस जगह पर जो है हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर को भेंट अर्पण करने के अंदर। सर ये नेग्लेक्ट जब हम करेंगे परमेश्वर और उनकी आराधना को, उनके ऑफरिंग्स को, व्हाट ही विल डू? गॉड विल नॉट लीव। Jeremiah chapter 13 verse 24 and 25 it says, if you are forgetting me, my people have forgotten me, so I will scatter them. मेरे लोग जो है मुझे भूल रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं उन्हें तितर बितर कर दूंगा करके कहता है। प्रिय लोगों, आज ये नेग्लिजेंस से, लापरवाही, आराधना के बारे में, परमेश्वर के बारे में, ये बहुत ही गंभीरता से लेना है। इसी के अंदर और एक बात हम जो है लापरवाही करते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। आज परमेश्वर के वचन में, बाइबल में से कितने लोग एवरी डे बाइबल पढ़ रहे हैं? आई डू नॉट नो। कितने लोग बहुत ही सीरियसली अपने क्वाइट टाइम को कर रहे हैं? आई डू नॉट नो। जब अगर हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम परमेश्वर के आज्ञा को इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 15 वचन कहता है, अगर हम उसे भूल जाते हैं, अगर उस वचन को अगर हम भूल जाते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को भूलते हैं। एक व्यक्ति इस तरह से कहता है, we will forget whatever we have learned if we don't use it, otherwise we will lose it। जो वचन हम भूल जाते हैं, जो सीखते हैं, जो अगर उसे भूल जाते हैं, भूल जाएंगे जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो आज ये बहुत ही गंभीरता से हमें सोचना है कि हम परमेश्वर के वचन को स्टडी करते समय पूरी तरह से करें, उसके लिए समय दें। बाइबल स्टडी जब चल रही है ऑनलाइन पर, जहाँ पर भी हो, वो समय लेकर हम उसे देखें। होशाया चैप्टर 4 वर्स 6 ये वचन ये कहता है, मेरे लोग नाश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है, क्योंकि उन्होंने जो है इस ज्ञान को ठुकराया है, इस नॉलेज को ठुकराया है, और इसीलिए मैं उन्हें ठुकराऊंगा करके वचन कहता है। ये ज्ञान है, ये परमेश्वर का वचन मुझे ज्ञान देता है, और इसीलिए आज मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर, बाइबल स्टडी को लेकर सीरियसली होकर के मुझे इसके बारे में सोचना है और करना है। जैसे जैसे अगर हम बाइबल को साइड करते जाएंगे, धीरे धीरे वचन को हम पढ़ना कम कर देंगे, हो सकता है कि वो जो है मेरे जीवन को पूर्ण रूप से आगे नाश की ओर बढ़ाते हैं। सो नेग्लिजेंस, अपडेट योर नेग्लिजेंस अबाउट गॉड, गॉड्स वर्शिप, गॉड्स ऑफरिंग एंड गॉड्स वर्ड। डू नॉट नेग्लेक्ट ऑल दिस थिंग, बट अपडेट, इसको केयरफुल रह करके आप कीजिए। दूसरा मैंने बताया, अपडेटिंग फ्रॉम द आइडलनेस टू द इंडस्ट्रियसनेस। आइडलनेस मतलब क्या है? ये ऐसा समय है जहां पर इज अ स्टेट ऑफ इनएक्शन और इनएक्टिविटी। सिंपल भाषा में अगर हम कहेंगे, आलस्य, आलसी बनकर रहना। कई बार जो है हम आइडलनेस होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वही समय होता है कि हम पाप में गिरते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं बाइबल के अंदर, दाऊद राजा जो है अपनी सेना को जो आपके अंडर में भेज दे कि तुम जाओ आगे अमनिया के लोगों से आप लड़ने के लिए जाओ, और ये आराम करने के लिए यरूशलेम शहर में रुके थे। और जैसे उन्होंने यरूशलेम शहर में रुककर अपने घर के महल के ऊपर जब पहुंचे, टहल रहे थे इधर उधर देख करके, तो उन्होंने देखा कि बेत्शेबा, और बेत्शेबा को बहुत ही सुंदर लगी, बेत्शेबा देखकर वो बहुत ही सुंदर लगी, और उन्होंने उनके साथ व्यभिचार किया करके हम देखते हैं। कब हुआ ये बात? जब वो टहल रहे थे। When he was idle, instead of going in the war, he was walking here and there.
जो काम करना था काम छोड़ करके जब आइडल रहते हैं तब ये सारे काम होते हैं। और उसके बाद बेत्शेबा को पाने के लिए उन्होंने उनके पति को भी मार दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से जो है परमेश्वर ने प्रॉफिट नातान को बेचकर दाऊद को कहा कि तुमने पाप किया है, व्यभिचार किया है। और तुरंत दाऊद राजा जो है इस बात को मानकर वो पश्चाताप करते हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रिविलेज को खो दिया। दाऊद राजा को परमेश्वर जो है, हो सकता है कि वो परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करता, लेकिन इस वजह से जो है वो खो बैठा अपना प्रिविलेज, अपना भाग्य परमेश्वर के मंदिर को बनाने का। क्यों? ऊपर टहलने गया। वेरी आइडल, वेरी सिंपल थिंग, बट इट कॉस्टेड हिम अ लॉट। ये जो है बहुत ही उनके लिए मूल्य चुकाना पड़ा। तो आज हम देखते हैं कि आज हम अपने जीवन के अंदर भी बहुत सारे लॉकडाउन में सब बातों में हम में से बहुत सारे लोग काम खो दिए हैं। कई बार हम आइडल हो चुके हैं, हमारा माइंड आइडल हो चुका है, कुछ काम सुस्ता नहीं है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम या आइडलनेस को जो है निकाल करके क्या करना है पता है? एक्टिव होकर मेहनती करना है। किस बातों में? इन व्हाट वे? गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को स्टडी करने के बारे में, परमेश्वर के सेवा करने के बारे में, परमेश्वर की बातों को लोगों को तक बोलने के बारे में, काउंसलिंग करने में। जो लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं उन सारे लोगों को जो है इस वचन को बताने के लिए लेट अस बी एक्टिव इन दोस थिंग्स। उन सारी बातों के अंदर एक्टिव हो जाए। फ्रॉम आइडलनेस टू द इंडस्ट्रियसनेस, अपने आप को एक्टिव कर ले। ये दूसरा हम देखे हैं। तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम अपडेट करें फ्रॉम द प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब ये होता है कि वेरी सिंपल वर्ड, पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट हम करते हैं, आज करना है, कल करना है काम, उसको और परसों के लिए डाल देते हैं। मतलब जो कुछ भी हम उसे टाल मटोल यानी कि टालम टोल करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, इसको पोस्टपोन करते हैं। दैट इज अनदर थिंग दैट इज कॉजिंग अस, या फिर वो हमें आत्मिक जीवन में नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति जो है इस तरह से कहता है, पोस्टपोनमेंट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट पाथ्स टू द बैकस्लाइडिंग। अगर हम आत्मिकता में बैकस्लाइड हो रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि हम पोस्टपोन करते जा रहे हैं। किन बातों का? जो कुछ भी आत्मिक जीवन में काम करना है उन सारी बातों को हम क्या कर रहे हैं? आई विल डू दिस, मैं कल करूंगा, बाद में करूंगा, शाम को करूंगा, कल करूंगा, या परसों करूंगा, या परसों से स्टार्ट करूंगा। इस तरह से हम करते हैं। बहुत सारे जवान लोग जो हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर जब सीरियस होकर कुछ करना प्रयास करते हैं तो लोग कहते हैं ठीक है आज का दिन जरा रहने दो, कल से मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है ये होने दो, संडे के दिन से स्टार्ट है, नहीं ये VBS से मैं स्टार्ट करूँ, ये रिट्रीट से मैं स्टार्ट, ये नए साल से मैं स्टार्ट करूंगा अपना आत्मिक जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए। वी पोस्टपोन एंड इट विल नेवर कम। परमेश्वर का एक सेवक इस तरह से कहता है कि सबसे डेंजरस वर्ड अगर बाइबल के अंदर हम पाते हैं तो क्या है पता है? दैट इज द टुमारो। टुमारो डेंजरस वर्ड इसलिए है क्योंकि हम जो कुछ भी टुमारो के ऊपर डालते हैं, कल करने के लिए डाल देते हैं, इट विल नेवर कम, इट विल नेवर हैपन। और इसी वजह से बहुत सारी चीजों को हम खो देते हैं प्रिय लोगों। डिलेड कन्फेशन ऑलवेज ब्रिंग्स लूजेस द जॉय एंड पीस इन आवर लाइफ। जब भी हम देरी करते हैं, देरी में हम सब कुछ खो देते हैं। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय 3 वचन से 5वें वचन के अंदर ये कहता है, अगर हम पश्चाताप करना, जो भी हम गलत काम कर रहे हैं इसको, अगर हम कुछ पाप किए हैं, कुछ गलती किए हैं, तुरंत उसी समय पर जो है मुझे परमेश्वर के चरणों में आकर माफी को मांगना है। अगर डिले करते हैं सो दैट ब्रिंग्स अ ग्रेटर पनिशमेंट इन माई लाइफ। मेरे जीवन के अंदर जो है पनिशमेंट को लेकर आती है। इसलिए आज केयरफुल रहे इन बातों से। पोस्टपोनमेंट को लेकर के आगे बढ़ाकर जल्दी से एक्शन में करे। टुडे नाउ द बेस्ट थिंग टू कम्बैट द पोस्टपोनमेंट इज टू डू द एक्शन नाउ। इसी समय पर हमें एक्शन करना है। आज हम में से बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं, हम इधर उधर जॉब ढूंढ रहे हैं, चलो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आज करेंगे, वो इस तरह से सोच रहे हैं। अप्लाई नाउ, अभी आप अप्लाई कीजिए। अगर कल जाना है तो कल जाइए, अगर आज जाना है तो अभी तैयारी कीजिए और जाइए उस काम को करने के लिए। या फिर कुछ गीतों को लिखना चाहते हैं, चलो मैं एक गीत को लिखना चाहता हूँ, नहीं अभी नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा, कल करूंगा। डोंट डू इट नाउ। इसी समय पर एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं या परमेश्वर के वचन को पढ़ना मुझे है,
मन तो कर रहा है लेकिन फिर बाद में कह रहे हैं अभी नहीं, कल पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा। यू डू इट नाउ, यू डू इट नाउ, एवरीथिंग यू डू इट नाउ। उसको पोस्टपोन ना करे, उसको अभी ही कर दे, क्योंकि वचन बताते हैं कि आज ही का दिन जो है उद्धार का दिन है, आज ही का दिन जो है उद्धार का दिन है, और इसीलिए इस उद्धार के दिन में ही हमें उसे पूरा करना है। बहुत ही अच्छी कहावत हम सभी लोग सुने हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आज मेरा स्पिरिचुअल लाइफ को अपडेट करना है। कल नहीं करूंगा, आज ही करूंगा, अभी ही करूंगा। जैसे ही मैसेज हम खत्म होते हैं वैसे ही तुरंत हम कर ले, अदरवाइज वी मे हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। नहीं तो हमारे जीवन में जो है हम सब कुछ खो सकते हैं। ये दो व्यक्ति के कंपैरिजन को कर मैं समाप्त करना चाहूँगा। दो व्यक्ति, दोनों भी शिष्य यीशु मसीह के। एक पतरस जो यीशु मसीह के इनर सर्कल में था, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के पीछे होकर चले। He became the closest disciple। इन्होंने यीशु मसीह का 3 बार तिरस्कार किया। नेक्स्ट और एक डिसाइपल बताता हूं, जुडास, ये भी यीशु मसीह के डिसाइपल थे, रेस्पॉन्सिबल पर्सन थे, ट्रेजरर थे, और इन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को धोखा दिया। पतरस ने डिनाई किया, तिरस्कार किया, यूदा ने धोखा दिया, धोखा देकर उनको पकड़वाया, लेकिन पतरस वापस लौट कर आया, पश्चाताप किया, रोया और कहा, प्रभु यीशु मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन यूदा, उन्होंने क्या किया, पश्चाताप किया, लेकिन जाकर फांसी डाल लिया, यीशु मसीह के पास लौट कर नहीं आया। मेरे प्रियो, इसी वजह से यूदास जो है अपने जीवन को खो दिया करके देखते हैं। आत्मिकता में रहकर, यीशु मसीह के साथ रहकर, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को खो दिया। आज मेरी और आपकी परिस्थिति भी कुछ इस तरह से हो सकती है। लेट अस अपडेट अवर स्पिरिचुअल स्टेटस, हमारी आत्मिक के बारे में सोचकर अपडेट करें। पतरस की तरह वापस से आए उस यीशु मसीह के पास, अपने जीवन को दे दे। ये 3 बातों से हमें बचकर रहना है। सबसे पहले मैंने कहा लापरवाह, किन बातों में लापरवाह, आत्मिकता जीवन में लापरवाह है, प्लीज बी केयरफुल, केयरफुल रहिए। क्या हम आइडलनेस यानी कि अकेले आइडलनेस हो रहे हैं, खालीपन, उसे निकाले और जल्दी से मेहनत करना शुरू, आलस्य से निकाल दे। तीसरा ये देख रहे हैं कि पोस्टपोनमेंट, विलंब ना करें, आगे ना टाले, तुरंत इसी समय हम करें। आइए हम अपने जीवन को टटोले और फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ। ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ನಮ್ಮದು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ। ಬುಧವಾರದ ಆರಾಧನೆಯು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬುಧವಾರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ। MYF ಮತ್ತು TCF ಕೂಟ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಝೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಸೂಚನೆಗಳು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು। सभी लोग वैक्सीन लीजिए, पहला और दूसरा ये वैक्सीन डोज जल्दी से लेने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर जो है जल्द से जल्द इस लॉकडाउन को खोले और हमें फिजिकली आराधना करने के लिए समय मिले और इन सारे विषयों के अंदर जागरूकता रहकर अपने जीवन को बिताए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, फिर एक बार तेरे लिए धन्यवाद देते हुए, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए, हमारे जीवनों में आपकी अपडेट देकर चलाने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। ये देव्यावा ತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾವತು
ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಆಮೇನ್. ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೊಡುವೆನು, ಚಿತ್ರಿಸು ನಿನ್ ಹಸ್ತದೇ. ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವೆನು, ನಿನ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವೆನು. ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವೆನು, ನಿನ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವೆನು. ರೂಪಿಸು ನೀ ನನ್ನ, ರೂಪಿಸು ನೀ, ರೂಪಿಸು ನೀ ನನ್ನ, ರೂಪಿಸು ನೀ ನನ್ನ. ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ ಕರದಿ ನನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಿನ್ ಪಾದದಿ ನನ್ನ ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ ಕರದಿ ನನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಿನ್ ಪಾದದಿ